Good morning. Happy New Year 2026. Wishing you all a very warm, a very prosperous, abundant, healthy, full of joys, full of happiness New Year. I wish you all achieve all your goals which you have not been able to achieve in your past years, in this year particularly, and you would definitely do it. I believe in you, I trust in you. You will do it. The only condition required is that you have to believe in yourself. What you have to do is very actively, very consciously write down somewhere that this year I'm not at all going to let my past identity define me. I will not let my previous failures define me this year. This is my year. I will rock this year. I will seize this year. I will make every single day of this year productive in every aspect. I'll work on my health. I'll work on my my emotional balance, creating my emotional balance. I'll work on my mental peace. I'll work on creating a harmony between my emotional being and my mental being, between my heart and my brain, the monkey mind, so to say. Then second thing is, this year listen to this thing very, very actively, very, very consciously. This year 2026 carries the energy of a horse in momentum. Sorry, इसके ऊपर. This year carries the energy of a running horse. Means the last year was of shading skin. We were releasing what we were not, and this year we will find out we are in a very good position. We are capable of finding out what we truly are in this year. This year defines horse, which is walking without permission, which is running without permission. It does not allow any permission to walk. Okay, the black horse, the darkest horse, running with all the audacity without asking for permission. Second thing is momentum. This year speaks of momentum, means running, in continuous pace. We are walking ahead, we are marching ahead. You cannot, I'm repeating this, you cannot afford to stay stagnant in whatever aspect you feel, you consider it for yourself. You cannot stay stagnant in this year. You have to work on yourself, be it your finances, be it your career, be it, if not finances and career, be it the year of finding yourself, the year of finding your dream career and what you actually want to pursue in life. Then the emotional traumas and all those things. If I speak very precisely, we are carrying so much of suppressed and stored emotions, the unspoken words, unspoken pain, unspoken hurt, unspoken rejections and heartbreaks and all the traumas. We have stored it literally in our body, which got stored in our heart first, and then it diffused throughout the body. And we literally have no idea, you literally have no idea how much pain your body is carrying without you even knowing it. So if not on finances, not on career, if you are well settled, you are earning well, you are healthy, you are working out on your physical body, then this year particularly is the year that you work on your Anahat chakra. What? Your heart chakra. Work on bringing to surface the unspoken hurt, the unspoken trauma, the suppressed emotions, which is literally stored in every single part of your body. Especially it gets stored in the unspoken words and the suppressed trauma. It particularly gets stored where? In our heart first, then in our abdominal area, where the solar plexus chakra and the sacral chakras are placed. Okay,
द मणिपुरा एंड द स्वादिष्ठान चक्रा वाला जो जगह होता है एब्डोमेन में, वेयर these चक्रास आर लोकेटेड, वहाँ पर होगा इमोशनल सप्रेशन एंड यू कैन फील इट. You will be able to feel it when you will work out, when you will work on your abs, when you will go for a run. You will feel pain in the abdominal very much because both the chakras are carrying so much of unexpressed emotions, suppressed trauma, and that is why we feel so much of hurt in that particular area. Then it gets stored in our thighs, butts, our calf, our throat chakra, brain also. So those emotions are stored from not only from this life, from past lifetimes also. So coming to the point, if you are not working on the other aspects, you have to work on this particular thing. What? First of all, realizing that we have so much stored hurt in our body. सबसे पहले started off from the emotional and mental pain, and then it got settled in the physical body, which does not even deserve it. Your heart does not deserve those things, your brain does not deserve those things, your physical body too does not deserve those things, because you are made for very incredible things. You are sent on earth for a very particular purpose, and rather focusing on that purpose, rather trying to put efforts in fulfilling those purposes, we are doing what? We are doing injustice to our mind, to our heart, and to this beautiful body which has been given to us this lifetime for creating wonders, for creating heaven on earth. So you cannot stay stagnant, you have to work on yourself. This is a command, you have to accept it. And then the year 2026 is calling the humanity, is calling the collective earth consciousness to transmute from our 3D reality to our 5D consciousness, which is being one with the God, aligned with the God, and I'm not getting the proper word, and integrating God consciousness in our body. Let me repeat this. 2026 in very particular, in maybe the next coming 10 years too, it is the most important year which will lead the foundation of us, of humanity, of all the mankind, of all the man and woman and girls and boys and adult, every single being. It is calling upon us to transmute from our 3D reality. What is 3D reality? This flesh, this body, that I should look beautiful, I should wear good outfits, and I should look fit, which is a good point, and I should look like the most beautiful girl and the most handsome guy, and I should look the most fairest. I should work on these removing these scars from our body. So we are limited, we have become limited to only focus on our 3D reality. And I have just mentioned what is 3D reality, where we are only focused on fulfilling our materialistic desires, where we are only limiting ourselves on fulfilling our which are desires, lustful desires, which are coming from here, not from brain. Brain is a very beautiful thing, but the mind, which has become disrupted, which has become malignant in past lifetimes. So that is it. You cannot afford to stay focused on your 3D reality this year, on focusing on your materialistic aspects this year, because this year is calling upon you, is calling upon every single being on this planet to start transmuting. If not, properly understand what, but start transmuting from 3D reality to 5D consciousness. Now, what is 5D consciousness? 5D consciousness is heaven. We are being sent from heaven.
सम पीपल से तुम तो भगवान हो, तुम तो इस दुनिया के हो ही नहीं, आप भी इस दुनिया के नहीं हो। Nobody belongs to earth, not a single being, not a single creature, be it animal or human, which is social animal. We do not belong to earth, we belong to the heavens. We all have been sent to earth for fulfilling a particular purpose, or if I speak very precisely and very particularly, we all are 5D beings, we all are spiritual beings, we all belong to stars. No matter if you are earning 1 lakh, 10 lakh, 10 crores, 2 crores or 10,000, or if you are doing nothing too, we all have been sent from the heavens, from God. We all are 5D creatures, 5D spiritual beings, and we have been sent to earth to experience human life, to experience human form, this flesh form, and to experience 3D reality. But Jai Shri Ram. See, this is a confirmation that whatever I am saying is true. 5 to 7, 10 people are, marching ahead with doing Naam Jap, which is a very good thing to do in the very first day of New Year. So God bless them all. Jai Shri Ram. So yes, we all have been sent to earth to experience human form, to experience the 3D reality. Keeping in our mind, keeping in our heart, remembering of our 5D consciousness. मतलब हमें भेजा गया था कि जाओ इंसानी दुनिया को जियो, वहाँ अनुभव करो कैसी होती है वो दुनिया। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को नहीं भूलना है कि आप कहाँ बिलोंग करते हो, असल में आप कहाँ से आए हो। मैंने भेजा आपको, मैं भेज रहा हूँ आपको एक पर्पस से, एक मकसद से, उसके लिए आपको जाना है। और कुछ टाइम तक, कुछ लाख सालों तक ऐसा था कि भगवान की आस्था हमारे अंदर थी। आस्था क्या थी? भगवान हमारे अंदर थे, जो आज भी हैं। भगवान थे और हमें दिखते थे, क्योंकि हमें पता था कि भगवान ने ही हमको भेजा है यहाँ पर, तो हम हमारा काम करते थे। एंड द सतयुग, त्रेता युग एंड द्वापर युग, excluding the negative forces in that time too, when we ponder about these 3 ages, these 3 yug, what image comes in our mind? Blissful serenity, godly presence, the omnipresence of God, the love, the kindness, the compassion in people, the divinity which we could see in people when we see the TV serials of those ages. Why was it like that? Why? It was like that because people very clearly knew, very clearly knew, they had this thing in their mind that we have been sent here from where? From there, from the 7 heavens, from the sky. They were aware of those things, and that's why they led their life accordingly. They fulfilled their purposes, they enjoyed life, they got married, they had babies, and they had fun too. When I watched those serials, Ramayana and Mahabharata and Shri Krishna ji wale jo serials hote hain, they used to have fun, and they used to have blissful fun, I also enjoy जब उसके अंदर मस्ती मजाक वाले कुछ किस्से आते हैं, तो they also enjoyed those things. But down the line, down the lakhs of crores of years, what has happened is there came a point when Maya started attracting the human. It did then too, but people were aware, they were conscious of their connection with the godly presence, connection with the godly consciousness, God consciousness, their oneness with the source, and that's why they were happy, they lived happily, and when they departed from the earth, they were happy because they knew that they are leaving to where they came from. And why would someone not be happy in going to their places? If a person is, my sister is living in hostel, when she came in holiday, in vacations, winter vacations, she was very happy. Why? Because she came from here only. So she would definitely be happy, she would be very excited, and
she would have all the fun when she is returning home, when she is returning to her mummy, papa, bhaiya and didi, because she knows that she will be having the tasty food and she will be living like a queen and princess, and she will go to places, have fun. Yes, she will get the princess treatment, and yes, she did. If not very much this year, next time we will get that, promise. So yes, and now when she has, left for her hostel, she was not happy. Why? Because now she knows यहाँ पर मम्मी भैया नहीं होंगे, पापा मम्मी नहीं होंगे, भैया और दीदी नहीं होंगे. Yes, but it's okay. But she has this belief in her faith. She has this belief and faith in her heart. What? कि यहाँ आई हूँ तो एक पर्पस से आई हूँ. मुझे अपना कॉलेज पूरा करना है, मुझे एक जॉब लेनी है और मुझे अच्छा एक बहुत डिसेंट पैसा कमाना है. वो पैसा उसके लिए डिसेंट कुछ भी हो सकता है. पैसा इज़ नेवर प्रॉब्लम कि मुझे 10,000 ही कमाना है, ज़्यादा मांगूंगी तो मैं लालची हूँ. 10 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, इवन द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन जो भी है, एलॉन मस्क और बिल गेट्स, वो लोग भी अगर हमारे हैं, दे आर नॉट बैड पीपल. पीपल हु आर अर्निंग एंड द मनी इज़ नॉट बैड. अगर वो सोचे कि मुझे इतना कमाना है, मेरी बहन अगर सोचे, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग. दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज शी हैज़ बीन सेंट टू अर्थ फॉर एक्सपीरियंसिंग the human life in all of its essence. She is sent here to soak life, and money is what? Money is a medium. What has happened is, over the lakhs of years down the line, Maya's influence, Maya's negative and malignant, malicious influence became so strong that the positive forces could not repel it, and we got stuck in Maya, and that's where things started worsening, and they are worsening till today. So now money has become what? A problem. It is not merely left like a medium of exchange, like a medium of energy where we can exchange it for obtaining things, material things. It has become a medium of creating what? Creating enmity. It has become a medium of creating large scale massacres, riots, violence, terrors, rapes, corruption, oh my god, murders, what not. It has become so, my lovely souls, because it was Maya's influence which we could not repel, which at a point of time, before a point of time, we were at the brink of it, we were at the verge of it, and when we could not repel it, it took all the humans inside it. And that's when भाई भाई का दुश्मन बनने लग गया, हस्बैंड वाइफ दुश्मन बनने लग गए, भाई बहन दुश्मन बनने लग गए, यार दोस्त दुश्मन बनने लग गए. फॉर वॉट? सिर्फ 500 रुपये के लिए. They would literally kill each other. Oh, you fellow. Why? जो दो लोग आपस में पैसे की वजह से लड़ रहे हैं, please listen to this very carefully. They have been sent from heavens. They are literally family members, not on this planet, but there. There's no Hindu, there's no Muslim, there's no Sikh, there's no Christian, no Jewish, no Parsi, no nothing there. The only thing, the only religion that exists in the heaven is love, compassion, beautiful connections, soulful connections, relationships, beautiful, soulful, blissful relationships, which would help the other person to evolve. So, two persons watching this video, if they have, enmity, they have caused enmity among them, between themselves, due to what? Mere 5,000 rupees, 10,000 rupees. तूने मेरे पैसे नहीं दिए, मैंने तुझे उस दिन दिए थे, तूने वापस नहीं किए. मैंने तुझसे पैसे मांगे, तूने पैसे नहीं दिए, दोस्ती खत्म. What? You both are brothers.
रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दिस, है ना. यू बोथ आर सिबलिंग्स, भाई बहन हो आप लोग. आपके अंदर भाई बहन नहीं हो तो आप मम्मी पापा हो, बेटा हो, किसी की बेटी हो, किसी के ग्रैंड पेरेंट हो, कुछ भी हो. इन दोज अपर रेल्म्स, इन 5D कॉन्शियसनेस, इन 5D रियलिटी, जहाँ से आपको भेजा गया है. तो आप इसको ऐसे देखो कि आपको वहाँ से भेजा गया है, आपके बीच में एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है जिसको आपको मेंटेन करके रखना था 3D रियलिटी में. बट व्हाट यू डिड इज़, बिकॉज ऑफ माया, आपने क्या किया, उस पैसे की वजह से आपने आपस में एक दूसरे को दुश्मन बना लिया. एंड दैट्स व्हेन माया सक्सीडेड, बिकॉज माया, द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, द नेगेटिव फोर्सेस ऑलवेज वांटेड those heavenly creatures to get separated, to become envious of each other, to become jealous of each other, to see someone as inferior, someone as superior, to have all the worthless complexities. Maya wanted that. You may have heard of what? Good and bad, evil and devil, sorry, गुड एंड बैड, एंजल एंड डेविल. यहाँ आती है एक वाइट, जब आप किसी डिसीजन के बारे में सोच रहे होते हो, है ना, टीवीज़ में देखते हैं अपन, कार्टून्स वगैरह में देखते थे. यहाँ पर एक वाइट कलर की एंजल होती है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की. व्हाट्स दैट? द वाइट एंजल इज़ यू इन योर ट्रू एसेंस, यू हु हैज़ बीन सेंट फ्रॉम द अपर हेवंस, फ्रॉम द 5D कॉन्शियसनेस, फ्रॉम गॉड इटसेल्फ. एंड गॉड इज़ नॉट अ पर्टिकुलर डीटी, अ पर्टिकुलर फिगर. गॉड कुड बी एनीथिंग. आप जिसमें भी मानते हो, सम पॉजिटिव फोर्सेस, यूनिवर्स, एनी पर्टिकुलर गॉड, वॉट एवर इट इज़. बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग बिलीफ व्हाट इज़ गॉड इज़ कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके अंदर रिसाइड कर रही है, और वो आपके अंदर इसलिए रिसाइड कर रही है क्योंकि आपको उसी पॉजिटिव एनर्जी से बनाया गया है, उसी पॉजिटिव एनर्जी से आपको भेजा गया है. पर वो पॉजिटिव एनर्जी किसने ओवर पावर कर ली है? दिस ब्लैक डेविल ने. तो आप होते हो ना कंफ्यूज, नहीं तुम अच्छा करो, नहीं तुम बुरा करो, इससे पैसा नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, पर इससे तुम गुड कॉज, नोबल कॉज एंड नोबल नोबल संस्कार क्रिएट करोगे. नेगेटिव बोलता है, ब्लैक वाला जो डेविल होता है वो क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, पैसे से मतलब है, तुम भले ही इसमें गलत हो रहा है पर यही करो. और फिर उसके बाद वो दिमाग पागल हो जाता है, फिर वो बोलता है अरे तुम दोनों चुप हो जाओ. व्हाट्स दैट? कभी भी ऐसा हो तो जो वाइट वाला बोल रहे हैं ना उसका सुनो भैया, क्योंकि वही हो आप. द नेगेटिव, द डेविल इज, द ब्लैक वन इज व्हाट? इट इज़ माया. मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर, आज नहीं तो कल ये वीडियो बहुत लोगों तक जाने वाली है, 110% जाने वाली है. बिकॉज दिस इज़ नॉट मी स्पीकिंग, दिस इज़ डायरेक्टली यूनिवर्स कम्युनिकेटिंग विद यू थ्रू मी. I am just acting as a medium, as a vessel. What we people feel is what? मैं किसी से दब नहीं सकता. तू मेरे को सिखाएगा क्या? तू नहीं बताएगा मेरे को क्या काम करना है, औकात में रह के बात कर. What's that? हमारा ईगो, कि हम सामने कोई बंदा है, कोई भी इंसान है, वो आपसे कुछ नॉर्मली बोल रहा है और आप उसको ईगो पे ले लेते हो. तेरी औकात, तूने मेरे से ऐसा बोला, रुक तेरे को बताता हूँ, रुक लड़के लेके आता हूँ, है ना, बोलते हैं ना लोग, बंदे लेके आता हूँ, तेरी पिटाई करवाता हूँ, तेरा मर्डर करवाता हूँ. व्हाट्स दैट? दैट्स ईगो. सामने वाला इंसान आपसे कुछ करवाना चाह रहा है और आप औकात पे आ गए उसकी. आप सोचो, प्लीज़ 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 2 मिनट के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में गाली लिख देना. मेरा जो चैनल है उसको डोंट रिकमेंड दिस चैनल कर देना, या जो भी मेरे बारे में बुरा भला सोचना हो सोच लेना. पर सोचो कि आप सामने वाले इंसान से नहीं दबना चाहते हो, पर सोचो आप जो हो ना, क्योंकि सांस आप भी ले रहे हो, मैं भी ले रही हूँ. अगर मेरे अंदर आत्मा है तो आपके अंदर भी आत्मा है. मेरे अंदर भगवान है जो मैं मानती हूँ, जो है तो वो आप में भी है. और भगवान वो आप ये मत मानो, अरे भगवान है, अरे भैया ये तो हिंदुइज्म फैला रही है और कट्टरे कर रहे हैं. नहीं, हाँ, मैं नाम तो ले ही नहीं रही, इसलिए मैं मतलब एनर्जी की बात करती थी. ठीक है, 1 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं. देखो 444 देखा, 1 मिनट के लिए नहीं, 5 सेकंड के लिए अपने दिल पे हाथ रखो, आंख बंद करो और सिर्फ कुछ नहीं, 5 से 5 सेकंड
पूरे दिन सोचना, जो भी कुछ भी सोचना है करना है। 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचना नहीं, सांस लो। मैं भी लेती हूँ आपके साथ। क्या समझ में आया? मैं समझाऊँ? ये जो आपने सांस ली, ये हो आप, द ट्रू एसेंस, कुछ भी सोचे बिना। तो ये आपकी आत्मा है और आप ऐसे ही थे भैया, आप ऐसे ही हो। लाखों साल बीतते बीतते ये कलयुग आते आते, कलयुग जो चल रहा है, इसमें आते आते ऐसा हो गया कि माया लोगों को ओवरपावर कर लेगी, जो उसने कर लिया सक्सेसफुली। अब आप सोच के देखो, आप सामने वाले इंसान से जिसने कह दिया भाई ओए गेट बंद कर दे, या फिर ओए देख के चले ना, तो आप औकात पे आ जाते हो, आपका ईगो हट हो जाता है। इसने मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, इसकी औकात कैसे? तो आप सोचो यार, आपकी जो वो जो भी 5 सेकंड तक आपने फील किया उस कॉन्शियसनेस को, है ना, वो भी इतनी ऑडेशियस है, वो भी इतनी ही ब्राइट है, वो भी इतनी कॉन्फिडेंट है खुद में, उसमें भी इतनी लाइट है, दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। पर उस कॉन्शियसनेस को माया ने ओवर पावर कर लिया और आपको अंदाज़ा तक नहीं है कि आप जो किसी से नहीं दबते हो, किसी की नहीं सुनते हो, किसी को अपना बाप नहीं समझते हो कि ये जो कहेगा मैं कर लूँगा, मैं आप नहीं सुनूँगा। आप सोचो आपको किसने ओवर पावर किया? उस माया ने, यहाँ इसने। आप ये नहीं हो भैया, सच्ची में आप ये नहीं हो, कसम मानो खुदा की, ये हो। इसको ओवर पावर कर लिया है इस माया ने, और आपको अंदाज़ा भी नहीं है आप कितने बड़े गुलाम बन के जी रहे हो। क्या सच्ची बोल रही हूँ? कर देना वीडियो बंद, पर ये बात होएगी हिट, देख लेना बाद में, फिर वापस आओगे वीडियो देखने के लिए, हैं? सामने वाले से नहीं करूँगा, पर मैं एक बार को सोचूं कि मैं जो ये कॉन्शियसनेस थी, मेरे अंदर की जो ब्राइट लाइट थी, और जो इतनी बिंदास थी कि दुनिया में जो चाहे वो जलवा दिखा सकती है, धूम मचा सकती है, उसको इस माया ने पता भी नहीं चला। हम तो अभी बर्थ हुआ है ना, हमारे अंदर तो ये हेरिडिटरी और क्या बोलते हैं उसको, हमारे प्रीवियस हमारे जो थे एंसेस्टर्स, उनके अंदर थी, फिर आते आते करके हमारे अंदर आ गई। तो आप सोचो, आपको डायरेक्टली नहीं, आप तो ओवर टाइम करते करते आपके अंदर ही आई है, और ये और इंटेंसिफाई होती है यूट्यूब देखने से, सोशल मीडिया देखने से, बड़ा छोटा अमीर गरीब इस सब का सोचने से। पर ये जो माया है ना, ये बहुत पहले आपको ओवर पावर कर चुकी है, आपको हरा चुकी है। अब आप सोच के देखो, जो आप दुनिया में किसी से नहीं हारना चाहते, है ना, इसने मेरे को कैसे हरा दिया? मेरी गाड़ी इसकी गाड़ी से आगे, मतलब इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे कैसे निकल गई? मेरे साथ भी होता है ऐसा कभी कभी, बट दैट्स नॉट अंदर से, दैट्स माई चाइल्डिश सेल्फ। मेरी गाड़ी के आगे इसकी औकात, मेरी गाड़ी से आगे इसकी गाड़ी निकलेगी, ऐसे कैसे निकलेगी? फिर आप गाड़ी भगाते हो, दैट्स ईगो। तो आप सामने वाले को अपने से 2 सेकंड 2 कदम भी आगे नहीं देना चाहते, और आपने किसको अलाउ नहीं किया? आपने अननोइंगली, अनकॉन्शियसली वो माया को अलाउ किया हुआ है कि तू मुझे लीड कर, तू मुझे कमांड दे, मैं तेरा गुलाम हूँ। आप गुलाम हो, मानो मेरी बात। और इस गुलामियत को छोड़ने का साल है ये 2026, मानो मेरी बात। We have to work on ourselves from transmuting our 3D reality to our 5D consciousness। इस माया से खुद को अलग करने का साल है ये। हमें सबको एक बन के रहना है, हम सब एक ही परिवार से आए हैं, ठीक है? एक एग्जांपल दूँ, आप अगर मान लो आप नेबर्स हो, ठीक है, नेबर्स को कंसिडर करना, वो हेवन में जो आपकी फैमिली थी, नेबर, वहाँ आप हेवंस में नेबर्स थे, और आप अभी अर्थ पे भेजे हो, आप नेबर्स हो, आपके बीच में लड़ाई वगैरह होती है, ठीक है, मतलब कुछ बहुत ऐसे दुश्मनी नहीं, पर थोड़ी बहुत होती है। मान लो कभी ऐसा हो, आप लोग दोनों, आपको पता नहीं है आप लोग वहीं जा रहे हो, लेकिन आप जब जाओ तो आप दोनों एक दूसरे को, मान लो कहीं आप गए, मुंबई गए, वहाँ मिले, आप ऐसे रैंडमली मिल गए एक रेस्टोरेंट, अरे भैया, भाई साहब आप भी आए हो क्या? अरे वाह वाह वाह, पूरी फैमिली के साथ आए हो? हम भी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। अरे वाह वाह, चलो आप कौन से होटल में ठहरे हो? अरे हम भी उसके पास में ठहरे, चलो अब आगे 2-4 दिन का जो सफ़र है साथ में ही करते हैं, मज़ा आएगा। अरे ये क्या हो, वहाँ तो आप लड़ते थे, हाँ
इनकी गाड़ी, इनके घर के सामने ना अपनी गाड़ी खड़ी मत करना, लड़ाई हो जाएगी, या फिर आप हमारे घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी मत करना। अरे आपके घर का पानी इधर से कैसे आ गया? आप यहाँ ऐसे करते थे। और हाँ भाई साहब, चलो 4 दिन साथ में ही सफ़र करते हैं, मज़ा आएगा, घूमेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे। और अरे मैं देता हूँ ना पैसे भैया, आप क्यों दे रहे है ना? अरे मतलब दूसरे के बेटे को भी आप बेटा चलो पापा गए, मम्मी गई, चलो, है ना? एक पूरे परिवार की तरह हो जाते हो यार। वो वहाँ क्यों हो जाता है फिर यहाँ आकर के फिर लड़ाई? तो ऐसा है यूनिवर्स में भी, मतलब ये जो नेबर वाला एग्जांपल है यूनिवर्स पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो नेबर्स भी और कोई भी नहीं लड़ता आपस में। वहाँ तो सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, खूब घुल मिल करके रहते हैं, खुशी से रहते हैं। और जब ठीक है, तो अब जब आपको वहाँ भेजा, वहाँ आप दोस्त हो गए, ठीक है। और तो जब आपको उस आपके असली परिवार से जब यहाँ भेजा जाता है कि जाओ, टिकट दे के भेजा जाता है, सबको लो जाओ ऐश करो जाकर के, पैसा वैसा खुद कमाना वो पता नहीं है, पर टिकट दे रहा हूँ तुमको धरती पे आने का, वो सबको टिकट दे देता है, आ जाते हैं सब। तो यहाँ आकर के भी क्या करना है? ओ वाह, तुम मुझे वहाँ भी मिले थे, तुम तो वहाँ भी मेरे दोस्त थे, यहाँ भी आ गए हो, चलो यहाँ पर भी साथ में खूब ऐश करते हैं, खुशी मनाते हैं, साथ में रहते हैं। ऑफकोर्स मटीरियलिस्टिक चीज़ों का एंजॉय करते हैं, खूब धूम मचाते हैं, धमाल करते हैं, पर कैसे? एक दूसरे का साथ देके। अच्छा आज कहाँ गए थे घूमने? अच्छा बढ़िया। आज तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज तो मुझे ये नया अनुभव हुआ, आज ये हुआ, वो हुआ। ये अपन मुंबई में तो कर रहे थे, जब अपन इसी दूसरी धरती में से इसी दूसरी धरती की दूसरी जगह पे भेजे गए, तब तो कर रहे थे। पर जो असली अपनी जगह है, असली जहाँ से अपन आए हैं, वहाँ से जब आप यहाँ आ रहे हो, जो आपकी असली दुनिया नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा जा रहा है। सफ़र होता है ज़िंदगी, हिंदी वाला सफ़र। तो जब आपको वहाँ से यहाँ भेजा गया सफ़र के लिए, तो भैया ये तो आपकी अटमोस्ट ड्यूटी बन जाती है कि जब आप वहाँ से यहाँ आ रहे हो और माँ का कोई फैमिली मेम्बर यहाँ दिख जाए, तो उसकी जी जान लगा करके, मतलब हंस के बात करनी है और मदद करनी है और दुनिया भर का सब प्यार करना उससे। क्या हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि अपन भूल गए भैया, अपन भूल गए कि अपन कहाँ से आए हैं। माया ने अपने को अपने अंदर इतना इनग्रॉस कर लिया, इतना अपन इनग्रॉस हो गए उसके अंदर, अपन भूल गए। और उसी माया से लड़ना है अपन को। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, मेरी बात सुनो, किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। 1 मिनट के लिए जो मैं कह रही हूँ उसको सुनो, कि ये जो आप हो, ये आपका इटरनल एसेंस है। वो आप जब अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा भी हूँ, मुझ में ये भी था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना खुश भी रह सकता हूँ, मैं इतना भी हंस सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी भी प्यारी बातें आ सकती है, मैं इतना भी दूसरों का भला सोच सकता हूँ। आप ये हो। पर आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगता है, सच्ची में बहुत बुरा लगता है सबके लिए, कि इस माया ने ना हमारे को ओवर पावर कर लिया। उसने हमें इतना अंधा बना दिया, इतना अंधा बना दिया सच में, कि हम गुलाम हो गए। उस माया ने तो लिखा हुआ था, उस माया ने तो सोचा हुआ था, गुलाम बना के छोड़ूंगी मैं इंसानों को, ये जो आए हैं ऊपर से, उनको एक रहने नहीं दूंगी। हम सोच के तो यही आए थे, और काफ़ी लंबे समय तक हम ऐसे ही जिए हैं, खूब एक दूसरे की मदद करते थे, साथ रहते थे। एक टाइम आया जब उस माया ने हमें सोचने पे, ये भूलने पे मजबूर कर दिया, लिटरली भूलने पे मजबूर कर दिया कि आप एक ही परिवार से, क्योंकि उसका मकसद ये था कि वो हमें भुला देना चाहती थी कि हम वहाँ से आएँ, और वो सक्सेसफुल हो गई। और आज क्या है ये माया? आप जानते हो क्या होती है माया? जिसने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, और एक दूसरे से हमें 3D लेवल्स को नहीं, 3D लोगों को नहीं, उस कॉन्शियसनेस को, 5D कॉन्शियसनेस को, जहाँ से हम आए थे, सच्ची में हम भूल गए। क्या मुँह दिखाएंगे यार? एक ना एक दिन जाएंगे ना, सब वहीं जाएंगे, तो मुंह क्या दिखाएंगे? वो बोलेंगे भेजा था ना तुमको एक्सपीरियंस करने के लिए, चलो बताओ। अब मैं लिख रहा हूँ डायरी में, जर्नल लिख रहा हूँ, क्या क्या एक्सपीरियंस किया। एक तो बोलेगा अरे मैंने नए नए दोस्त बनाए, खूब ऐश किया, और ना करोड़ कमाए, और वो खर्च किए, नए मकान बनाए, दोस्तों को पार्टी में लेके गया, घर वालों के लिए ये खर्चा किया, और खूब पुण्य दान धर्म के काम किए। भगवान बोलेंगे वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, वो रखा तेरा गिफ्ट जाके ले ले। दूसरा बोलेगा सर नीचे करके खड़ा हो जाएगा, जैसे हम प्रिंसिपल मैम के सामने गलती करने पर खड़े हो जाते हैं। क्या किया? लड़ाई। वीडियो लिमिट पूरी हो गई थी उसकी। क्या किया? लड़ाई, बात नहीं की किसी से, दुश्मनी करके रखी, ऐसे रहता था, नहीं बोलता था किसी से। माया ने मेरे को ओवर पावर कर लिया था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आसपास वाले लोग मेरे ही हैं। मैं आपको भूल गया था, सॉरी भगवान जी, आप आंखें नहीं मिला पाओगे इनसे। भगवान जी मतलब सॉरी यूनिवर्स, आप आंखें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि आपको जब भेजा था ना फुल एनर्जी में थे, अरे आप देखो तो सही, और यहाँ क्या भूल गए? नहीं भूलना था ना।
बोलोगे, फिर बर्थ होगा, फिर आओगे, ये सब चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप ये नहीं समझ जाते कि व्हाट आर योर सोर्सेज, व्हाट आर योर ओरिजिन्स। जिस जन्म में आप ये समझ जाओगे, उसके बाद आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इसीलिए भेजा जा रहा है एक्सपीरियंस करने के लिए कि यहाँ तो इतना घुल मिल के रहते हो, चलो जाओ देखिए धरती पे भी आप रहते हो क्या। वैसे रहना तो वैसे ही था आपको, आप भूल गए। माया ने आपको मजबूर कर दिया। इस माया के खिलाफ़ लड़ना है अपने को, मेरे को, आपको, एक दूसरे को, 5 लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। हम 5 लोगों को मिलके भैया, वो जो है ना, सबका माथा उठा के सामने रख दो, वो जो माइंड है, 5 भाइयों को मिलकर के उससे लड़ना है। भाई देख ले, इससे लड़ना है। ये है दुश्मनी की वजह, ये है जिसने अपन को अलग किया है, ये है जिसने तो अपन को भाई एक दूसरे से लड़ना, अपन को उस माया के खिलाफ जाना है। हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। आ गया ना समझ में क्या करना है, कहाँ से आए हैं। आज से तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, कौन हिंदू कौन मुसलमान। हाँ, ये तो बनाया भी उस माया ने। बताऊँ आपको, ये जो धर्म जात वगैरह ना, ये भी अपन ने नहीं बनाया कि अपन इंसानों पे कट्टरता दिखाने लग जाते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने नहीं करा भैया, उसकी नहीं है गलती, उस माया ने मजबूर करा उसको करने के लिए। तो इस माया के खिलाफ लड़ना है। आज से ठान लो, रार ठान लो। हार मत मानो, रार नहीं ठानो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यही लक्ष्य है। और 2026 तो खास कर इसीलिए आया है अपनी ज़िंदगी में, है ना। 2 + 0 + 2 + 6 is 1। 1 is what? एकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप। दिखाओ इसको, हम अंदर लेकर के आओ। अब मुझे मेरे असली रूप में आना है। मैं बताता हूँ अब इस माया को, इसने मेरा इतना बिगाड़ा है, मैं बताता हूँ इसको। इसने मुझे मेरे ही भाई से अलग कर दिया भैया। उस काम के ऊपर लग जाओ, सब मिलकर के करेंगे ना, हो जाएगा। सच में मानो मेरी बात, अर्थ के ऊपर हेवन क्रिएट हो जाएगा। आई अफर्म, आई डिक्लेयर, आई क्लेम, आई pronounce, I dictate, I guarantee, and I audaciously positively speak into my existence कि अर्थ के ऊपर हेवन क्रिएट हो जाएगा। बस उस माया से लड़ना है। आज से लड़ाई इससे है। ये इतना सा जो माथा है ना, ये ब्रेन भी बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये जो मंकी माइंड, इतनी सी चीज़ जगह ने ना अपने को कर लिया है हैंगओवर चढ़ गया हमारे को इसका। आज से इससे लड़ना है। नशा करना है तो उस भाई को अपना बनाने का, नशा करना है तो ये बिलीव। स्पेस का नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार, आई एम सो सॉरी, खाली करूँगी फ़ोन। नशा रखना है तो इस बात का कि ये जो पैसा है ना, ये माया है, इसको मैं खर्च करूँगा, बिल्कुल करूँगा। पैसा खर्च करना, बंगलो बनाना, करोड़ों रुपए के मेंशंस बनाना, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदना, लग्जरीज अफोर्ड करना, पॉर्श में घूमना। मेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? बहुत सारी है। रेंज रोवर, रोल्स रॉयस में घूमना इज़ नॉट अ बैड थिंग इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, इफ़ यू हैव इंटेंशंस ऑफ डूइंग दैट, इज़ नॉट अ बैड थिंग। यू आर नॉट अ बैड ह्यूमन। व्हाट इज़ बैड इज़ कि उस पैसे को आपने मान लिया अपना अल्टीमेट गोल और अपने सगे जो थे फैमिली मेम्बर उनको बना लिया दुश्मन। ये गलत है, ये नहीं करना। एक हो जाओ। 2026 के अंदर अपन मिलेंगे, मतलब सॉरी, अपन मिल करके ये करेंगे। और अपन जब मिल जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, तो क्या करेगी माया? कुछ नहीं कर सकती। और इसमें कोई ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो मेरी बात सुने और पर्टिकुलर कम्युनिटी से मैं बोलूँ। आप सबसे सब के सब एक हो जाएंगे ना। We will be able to create heaven on the earth. I saw 111. We will do that. It's just that हमें एक होना पड़ेगा, हो जाना एक। आज से इससे करनी है फाइट सामने वाले से नहीं। वो आपका फैमिली मेम्बर वहाँ से आया, वो नहीं है दुश्मन। माया ने आपको बनाया है दुश्मन। कि माया का तो था, माया ने तो जाल बिछाया था। टीवी सीरियल्स में नहीं होता, एक होती है नेगेटिव कैरेक्टर वाली लेडी जो दो अच्छे फ्रेंड्स से, मान लो 2 माँ बेटी हैं, उनमें झगड़ा करा देती है। तो जब आप देखते हो कितना बुरा लगता है। आप खुद के लिए भी तो सोचो कि आप दोनों वही की थे। वो माया आई, उसने आपको कर दिया अलग। माया जीत गई भाई, नहीं जीतना देना है। जब तक जीती जो जीती, अब अपन नहीं जीतने देंगे, अपन मिलके हराएंगे उसको, बिल्कुल हराएंगे डेफिनेटली। आज से ही स्टार्ट करो खूब, और ऑल द वेरी बेस्ट।
फॉर दिस ईयर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी आपकी मटेरियल चीज़ें हैं, जॉब वगैरह लेनी है, घर बनाना है, सब अच्छी, पर ये 3D से 5D में शिफ्ट करने का टाइम है। और इस सब में नहीं, मतलब इसमें, इस लक्ष्य में अपन साथ हैं, मिलके करेंगे। टेक केयर, सी या, बाय बाय। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, लिटरली। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। Breathe in fresh air. This fresh air, this new year has brought with it drizzling rainfall. छोटे droplets गिर रहे हैं. It has brought with it cool breezes, fresh wave of cool breezes. Embrace them. Have fun. All the very best. We are in this together. We got this. We'll do this. We'll make it. Definitely. This is me, Priksha Soni, signing off. Bye bye. Take care.